Hello and welcome to today's D&D session, and we'll try to cover the news as they are. So Tamil Nadu and Puducherry are going to get another cyclone, that is Nivar. Nivar और ये जितने भी नाम होते हैं ऐसा नहीं है कि एकदम एब्रप्टली सोचते हैं लोग. क्या होता है कि हर रीजन से कुछ कंट्रीज कुछ नाम सबमिट करते हैं, सारे नेम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर होती है एंड इन रोटेशन दोज नेम्स आर यूज्ड. नाउ व्हाई डू वी यूज यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर दीज साइक्लोन्स? बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन एंड दैट इज ताकि डुप्लीकेशन ना हो, हमें पता रहे कि कौन सा साइक्लोन कहाँ पे इम्पैक्ट किया था, ठीक है, एंड व्हाट वाज द काइंड ऑफ डेवस्टेशन इट कॉज्ड एंड वी कैन लर्न फ्रॉम इट. दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सेकेंड, यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं हमारे यहाँ पे, आपने एक चीज़ देखी होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में. इन द पास्ट वी यूज्ड टू हैव एन इंसिडेंट मे बी वंस इन 2 years विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. 2 साल 3 साल में एक काफ़ी बड़ा साइक्लोन आता था. But now you must have observed that every year we are getting 2 to 3 cyclones like that. The reason is we are seeing a drastic climate change which is having a strong impact. ठीक है, climate change के वजह से एक strong impact हो रहा है, especially on the waters of the equatorial region. And since equatorial region और monsoon winds का बहुत बड़ा impact इंडिया पे पड़ता है, that is why we are seeing a higher prevalence in terms of let's say cyclones, whether be it in Bay of Bengal or in Arabian Sea. दोनों जगह पे आपको ज़्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन्स अब दिखाई देते हैं. ठीक है, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द साइक्लोन विच इज अबाउट टू हिट इंडिया. एंड प्लीज इफ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दीज रीजन्स, बी सेफ, ध्यान रखना खुद का. एंड आई रियली प्रे दैट इस बार कम से कम ऐसा ना हो कि लोग ऑलरेडी कोविड के चक्कर में इतने परेशान है कि और कुछ खतरनाक हो जाए. फॉर एग्जाम्पल इट हैपेंड इन केस ऑफ निसर्गा एंड अदर्स, so that shouldn't happen. But please do keep take due care of yourself and your family. Next, government has banned more than 43 apps for security threat, and it includes AliExpress, Ali Suppliers, Camcard, DingTalk. All these are simply Chinese apps. Now, why are they very important to ban? Because these apps have been accused of collecting data from users, and they don't collect only the data which user has agreed to. They collect everything. आपके फ़ोन में अगर ये ऐप पड़ी हुई है कोई भी, एंड जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल किया, सारी परमिशन पे ओके 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 कर डाला, एंड एंड ऑफ द डे होता क्या है कि वो ऐप आपका सारा का सारा डेटा एक्सेस करने लगता है. In fact, there have been allegations on apps like Google, and they're not allegations, they're accusations, that these apps have been hearing to everything that you say. For example, you and your friend are talking that okay, let's do one thing, we'll go for a paintball game. What will Google do is it will keep hearing everything that it gets from you. Now, if you remember, तुमने एक अपने फ़ोन में छोटा सा फीचर एक्टिवेट करा होगा, ओके गूगल. When you say okay Google, your phone automatically hears your voice, identifies it, and starts capturing whatever you are going to say next, right? But इसको वो okay Google पता कैसे चला? Because it was consistently hearing everything you were saying. So the moment you say okay Google, mic ने वो data capture किया, and whatever you were saying, since it was being processed, the process said that okay Google is the term which has been said, and now your phone automatically identifies that it needs to take your command. But otherwise also it was listening to you. Now, since your phone is listening to everything say, and you were talking to your friend about a paintball game, chances are very high that now it will start giving you ads of paintball centers near you, जहाँ पे तुम जाके गेम खेल सकते हो. अब ये तो महिमा है आज के ज़माने में तकनीक की कि आपका पूरा का पूरा डेटा जो है, दिस इज बीइंग सोल्ड ऑफ टू द थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स. आपकी डिटेल्स दे आर बीइंग सोल्ड ऑफ, ऑल्दो यू नॉट पर्सनली आइडेंटिफाइबल, बट मार्केट रिट लार्ज इज आइडेंटिफाइबल. नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इशूड दिस ऑर्डर. सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेवेंट है, तो यू नो MeitY इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैनिंग देम. देन विच सेक्शन डज इट यूज? इट यूजेस सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और IT एक्ट 2000. उसका सेक्शन 69A हैज बीन यूज्ड फॉर दैट पर्पज. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक नया काम हुआ है. पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया दैट 2 लोगों की चॉइस होती है शादी करना, और उसके लिए अगर वो कन्वर्जन करते हैं तो ये उनकी चॉइस है, किसी और को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बट वेरी नेक्स्ट डे यूपी गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद ऑर्डिनेंस सेइंग दैट अगर किसी ने केवल रिलीजियस कन्वर्जन किया तो इट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, सो टू से, एंड इट विल अट्रैक्ट अप टू 10 years in prison. Now, I don't know what is the legality of this ordinance anymore, but yeah, one thing we can be very certain of, that making it a non-bailable offense itself is a major issue, because it's a civil offense. Marriage, ये सारे इंस्टीट्यूशन सिविल ऑफेंस होते हैं, ठीक है. इनको आप क्रिमिनल तरीके से हैंडल करोगे, देन इट मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली. क्रिमिनल इंटेंट अगर किसी का होता है तो वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है. बट इफ गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग, लेट्स सी, द कोर्ट brings the wisdom back, but I don't want to make any comment on to this because it's a very burning topic.
एंड रही बात लव जिहाद पे, व्हाट इज ओपिनियन और व्हाट नॉट, आई बिलीव सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, आपका अपना होगा, किसी और का कुछ और होगा, मेरा कोई और ओपिनियन होगा, डजंट मैटर, वी आर हियर टू स्टडी द लीगैलिटी। एज अ स्टूडेंट अपने आप को लीगैलिटी पे फोकस रखो, नॉट ऑन द एथिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि पेपर में एथिक्स नहीं पूछते हैं, लीगैलिटी और फैक्ट्स पूछते हैं। सो डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू एक्सेस ऑफ डिबेट्स कि इसने पर्टिकुलर इंस्टेंस में ऐसा किया तब सरकार कुछ नहीं बोली, उस इंस्टेंस में जो है सेकुलरिज्म क्वेश्चन हो गया, डजंट मैटर, ठीक है, वो नहीं आने वाले, तुम लीगैलिटी पे फोकस रहो बस, दैट्स इट। अगला पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड द स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द ट्रायल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, वंस द वर्ज ऑफ कंप्लीशन से वो कंप्लीशन वाले स्टेज में उतर जाते हैं, you will see that vaccine will start getting distributed. First of all, it will be distributed to the frontline workers, and then it will be distributed to certain more classes of people, and finally it will be distributed to public at large. But ऐसा नहीं हो सकता ना कि फिर आप लास्ट मोमेंट पे एकदम जब वैक्सीन बन जाए तब प्रिपेयर करोगे कि किसे बांटनी है। So already Prime Minister has indicated that the vaccine is about to be prepared, so everybody should be ready with the lists of people जिनको उन्हें ये वैक्सीन प्रोवाइड करानी है और कब प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट उमर खालिद जी के ऊपर तो बढ़िया केसेस चल रहे हैं यहाँ पे, एंड वही है, जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट स्लम क्लस्टर्स। स्लम क्लस्टर्स के ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। इफ यू रिमेंबर, अक्टूबर में एक ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, जहाँ पे कोर्ट ने एब्रप्टली बोल दिया था दैट एनी पर्सन हु इज लिविंग इन स्लम्स राइट नेक्स्ट टू द रेलवे लाइन्स हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर, और उनको वहाँ से हटा के रिहेबिलिटेशन के बारे में भी कोई बात कोर्ट ने नहीं करी थी, बट ये कहा था कि सारे स्लम्स को खाली कराया जाना है। अक्टूबर में, सॉरी, इसकी हियरिंग सेकंड हियरिंग थी, अगस्त में प्राइमरी ऑर्डर आया था। नाउ दिस हैज रेज्ड मेनी पीपल इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज सेड दैट अगर हम इन्हें मूव कर देंगे, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड, वेयर वुड दीज पीपल गो? इन लोगों के पास तो कोई घर ही नहीं रह जाएगा और इनका पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। सो कोर्ट से सीधे सीधे सरकार ने बोल दिया है कि वी विल नॉट बी एबल टू टेक एनी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। हम करेंगे तो इनको सही से रिहेबिलिटेट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी किकिंग देम आउट ऑफ देयर ओन अबोर्ड्स। अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्री वायलेशन फॉर न्यू पार्लियामेंट वायलेट्स गवर्नमेंट टर्म। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कुछ खासा बचा नहीं है समझने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पे ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं कि सरकार बिल्डिंग क्यों बना रही है व्हेन एट द टाइम ऑफ कोविड वी नीड मोर मनी सेव्ड, but you also have to understand that we are about to delimit the parliament, which means representation will increase, number of people will increase, so parliament has to be expanded and that wouldn't be done overnight. आपको दिल्ली में धीरे धीरे ही काम करना पड़ता है, ओवरनाइट कुछ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। एंड टुडे पेपर में भी बहुत हाईलाइट्स नहीं है, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट लुकिंग एट द न्यूज़ वन बाय वन। रैंडम टेस्टिंग हो गई यहाँ पे, ओके, सर्विसेज रिज्यूम करने वाला। देन अकबर रमनी वाला जो केस चल रहा है, आई बिलीव यू नो अबाउट इट। प्रिया रमानी एंड अकबर जो हैं, इन लोगों ने, मतलब एमजे अकबर पहले यूनियन मिनिस्टर होते थे, तो एक एलिगेशन लगा था मीटू के टाइम पे, तो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन रेज कर दिए थे काफ़ी सारे। दैट इज़ द न्यूज़, नॉट अ बिग वन, यू कैन इग्नोर दैट ऑल्सो, एंड दिस हैपन्स व्हेन द सिस्टम इज फेयरली स्लो। ओके, दीज आर पॉलिटिकल न्यूज़, यू कैन स्किप देम कम्प्लीटली। और एक चीज़, इस टाइप के बोल्ड क्लेम्स इवन इफ अ पॉलिटिशियन इज मेकिंग, डोंट रीड देम, रीड ओनली द क्लेम्स दैट आर मेड बाई, लेट्स से निकार ने कोई क्लेम किया है, IMA ने कोई क्लेम किया है, ठीक है, या इस टाइप से कोई भी, IMC ने कोई क्लेम किया है, WHO ने कोई क्लेम किया है, रीड अबाउट देम, नॉट अबाउट द क्लेम्स मेड बाई एनी पॉलिटिशियन वेदर बी इट एनीबडी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फार्मर लीडर, अभी यहाँ पे चल रही है, आपको फार्मर वाली प्रोटेस्ट भी पता होगी। सी, इन टुडेज न्यूज़पेपर देयर इज नॉट प्रीटी मच टू डिस्कस। नाउ दिस इज समथिंग which is important because there have been allegations of utility or utilization of central government's institutions against any kind of state government. So जहाँ पे भी ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी पावर नहीं है, उन सारी जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ED, IT, CBI ये रेड मारते रहते हैं अलग अलग पॉइंट पे, एंड दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड महाराष्ट्र हैज़ बीन सीइंग अ वेरी वेरी बिग ड्रामा बिकॉज ऑफ दैट। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको पता होगा, पहले सुशांत सिंह राजपूत जी के सुसाइड पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ सरकारों का। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड वाज, एक कंगना रनौत जी वाला इंस्टेंस हुआ, कंगना रनौत जी के इंस्टेंस के बाद में अर्नब गोस्वामी का इंसिडेंस हुआ। सो एनीबडी हु हैज़ बीन स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली एंड्स अप इन जेल, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ पब्लिक एक्शन होता ही है। एंड
स्टेट गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि सिंस इट हैज स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन पीपल जो केंद्र सरकार के फेवर में बोलते हैं, तो अब केंद्र सरकार ने सरकारी अफसरों के ऊपर सीधे सीधे जांच शुरू कर दी है। कभी एमएलएस के ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, तो कभी सरकारी अफसरों के ऊपर स्टार्ट हो जाती है इंक्वायरी। सो ऑल दीज आर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस व्हिच आर देयर बेसिकली, बट दिस इन इटसेल्फ शोज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल मिसट्रस्ट दैट इज प्रिवेलेंट इन इंडिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल मिसट्रस्ट? That is a situation when the opposition, or let's say the parties which are not in power, they are not able to trust those who are in power, and all of these political parties have some sort of vote base. तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बिलीफ सिस्टम होता है वही इनके वोट बेस का भी बिलीफ सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई पॉलिटिकल लीडर सेज दैट ये गवर्नमेंट जो है ये बिक गई है, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये बिक गई है। और अगर आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट जो भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप फॉलो करते हो, वो बोलते हैं कि नहीं दिस गवर्नमेंट इज वेरी स्टेबल, you will start believing that yes, this is a very stable government. So it all depends on the kind of political ideologies which we are following. And since there has been a major debate between the center and state politics going on, so Maharashtra के अंदर अब लोग भी divided opinion present कर रहे हैं. And this again is not a very good thing when it comes to the federal structure of the country. Because end of the day you should understand that जब तक country में एक political trust establish नहीं होगा, तब तक चीज़ें establish नहीं होने वाली किसी भी तरीके से सही। Okay, then there was this one particular editorial I wanted you to go through on your own. It's a very easy. जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, say no to corporate houses in Indian banking. Now, recently you must have heard that there was a report which said that we should have more and more private banks. Corporate houses should be allowed to start their own banks. And आप लोगों ने शायद यूट्यूबर्स के वो वीडियोस देखे होंगे। हमारे यहाँ यूट्यूबर्स, हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में यूट्यूबर्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल. सो दे ऑफन कम आउट एंड दे सिंपली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी इशू कि ये तो प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी विल नाउ स्टार्ट बैंक्स एंड ऑल दैट. टू ऑल दोज पीपल, इनफैक्ट आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट भी एक प्राइवेट बैंक की ही तरह हुई थी. ठीक है, आरबीआई इन इट्स इनिशियल फेजेस वाज अ प्राइवेट बैंक, लेटर ऑन इट गॉट नेशनलाइज्ड. तो ये मत समझिए आप कि आप ये जो प्राइवेट बैंक्स का फंडा है, दिस इज अ वेरी न्यू वन, दिस इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम. एंड इंडीड बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन में वी आर सीइंग मोर एंड बेटर एफिशिएंट बैंक्स कंपेयर्ड टू एनी सरकारी बैंक. जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ. एक सरकारी बैंक है जिसका नाम है पंजाब सिंध बैंक. इंडिया की सबसे पहली बैंकों में एक थी जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट बैंक टू ब्रिंग कंप्यूटर्स टू बैंकिंग सेक्टर. आज तक एटीएम नहीं लगा पाई है वो. ठीक है, टिल डेट इट हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश इट्स ओन एटीएम्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड जहाँ लगे वो चल नहीं रहे, दे आर डिसफंक्शनल एटीएम्स. आप बात करो ऐप की, तो एक बार जरा ऐप स्टोर पे जाके पंजाब सिंध बैंक की ऐप डाउनलोड कर लेना. 2011 में जब बच्चे कोडिंग सीख रहे थे मेरे साथ वाले, तो उससे भी अच्छी ऐप उन्होंने उस ज़माने में बनाई थी जो इंटरफेस उस ऐप का है. तो प्रैक्टिकली यू कैन सी दैट व्हेन थिंग्स आर in the government hands, people generally tend to think of themselves as a bureaucrat. They don't think of themselves as a public servant. They instead become what we call as bureaucrats. कि हम केवल सरकार की सेवा करेंगे, जनता की नहीं. और सरकार की सेवा हमें तनख्वाह दे ही देती है अच्छी खासी, तो हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें. This is not a good kind of habit which is being built in banks, because economy works on efficiency and economy works through banks. तो बैंकर्स आर, आई वुड से, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ एनी आई वुड से इकोनॉमी. अगर बैंकिंग सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इन दैट केस देयर विल बी अ मेजर कंसर्न. इफ इट इज नॉट एफिशिएंट, योर इकोनॉमी विल नेवर बी एफिशिएंट. सेकंड थिंग, डज दिस मीन कि हम बैंकों को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दें और उनको बोलें यू बिकम अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी? ऑब्वियसली अ बिग नो. यू मस्ट हैव सीन इंस्टेंसेस जहां पे बैंक्स ने लोगों के साथ मजाक किया है बहुत हद तक. लोग चाहते भी नहीं थे कि उनके अकाउंट्स खोले जाएं और उनके अकाउंट्स खोल दिए गए. लोग चाहते भी नहीं थे कि इंश्योरेंस दिया जाए, एंड बैंक स्टार्टेड गिविंग देम इंश्योरेंस ऑन देयर ओन. उनके अकाउंट से सीधे प्रीमियम कट जाता है. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच मस्ट हैव हैपेंड विद एवरीबॉडी इन दिस क्लास. आपके पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी बैंक्स ने ऐसा किया होगा. दे डिडंट बाय अ इंश्योरेंस, एंड येट व्हाट हैपेंड वाज कि उनको उठा के सीधे सीधे इंश्योरेंस चेप दिया गया एक, और बाद में फिर वो कंप्लेंट करते हैं, पैसे वापस आते हैं, ऑल दैट. इट बिकम्स अ लिटिल बिट टू क्रिटिकल. But you should understand that complete privatization is also not the way. You have to find a balance between privatization as well as regulation. तो RBI की जो recommendation है, it is only that you allow anybody to open the bank. हमारी capacity free होगी उसके बाद में. See, if government is the one that is regulating as well as operating the banks, एक बहुत बड़ा dilemma create होता है कि मैं ही operate कर रही हूँ banks और मैं ही regulate कर रही हूँ. I am the teacher, I am the student. ये तो गलत बात हो गई ना फिर वहां पे. So this should not be the case. अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको रेगुलेटर में बैठने का हक नहीं है, और अगर आप रेगुलेटर हो तो यू शुड नॉट बी द वन ऑपरेटिंग द बैंक्स, राइट. आई मीन यू शुडंट बी अलाउड टू इवैल्यूएट योर ओन एग्जाम आंसर कीज, राइट.
वरना फिर फायदा क्या रह जाएगा evaluation प्रोसेस का. So RBI is saying the same that the government should free up its capacity. It can go ahead and do better things. ठीक है, बैंक को प्राइवेट को चलाने दो, रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बैठा है वहां पे. ठीक है, आरबीआई इज द वन दैट इज देयर टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर. एंड देन बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इंडिया के अंदर. यू शुड हैव सीन, इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट बैंक्स का परफॉर्मेंस देखो, इट हैज बीन बेटर कंपेयर टू द नेशनलाइज्ड बैंक्स. एनपीए लेवल्स बहुत लो हैं उनकी बैलेंस शीट्स पे अच्छा प्रॉफिट दिखता है. एंड इनफैक्ट अभी तक जितने भी बैंक्स के ऊपर पीसीए विच इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द आरबीआई, वो ज्यादातर, एंड अगेन आई एम वेरी कॉशियसली टेलिंग यू, इट इज मैक्सिमम नंबर हैज बीन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स या फिर सरकारी बैंक्स या कोऑपरेटिव सेक्टर वाली जो थी जैसे पीएमसी वगैरह. बट अभी तक ऐसा कोई प्राइवेट मेजर बैंक नहीं है जिसके ऊपर पीसीए नॉर्म्स लगे हों. बिकॉज प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म. The more privatized a bank is going to be, higher is going to be the professionalism in that bank. कभी देखना जाके आईसीआईसीआई में या फिर एक्सिस बैंक में बढ़िया कॉर्पोरेट ब्रांचेस में इनकी जाना अकाउंट खुलवाने, और एक बार एसबीआई के किसी भी ब्रांच में चले जाना फॉर दैट मैटर, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म दैट प्रिवेल्स इन बोथ द ब्रांचेस. ठीक है, ऑटोमेटिकली. सो गो थ्रू दिस एडिटोरियल ऑन योर ओन. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मूव वेयर वी आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज द बैंक्स. इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये. ठीक है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे. सेकंड एडिटोरियल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. संपत जी जो है थोड़े से नाराज रहते हैं सरकार से, बिकॉज ऑब्वियसली आप इनकी ईमेल आईडी पढ़ सकते हैं. ही वर्क्स विद द हिंदू डायरेक्टली. ही इज द एडिटर ऑफ द पेपर. एंड जाहिर सी बात है फिर हिंदू तो नाराज रहता ही है सरकार से. इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी उसी टाइप से है. एंड इट इज ओनली अबाउट सोसाइटी. तो कुछ खास इसमें यू वुडंट फाइंड अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक्स. ऐसे के लिए कुछ एक दो फॉर्डर पॉइंट मिल जाए तो मिल जाए, वरना यू कैन स्किप दिस वन. बट या आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो अहेड एंड रीड द फर्स्ट वन. एक क्रिटिसिज्म तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा अगेंस्ट द मूव टू प्राइवेटाइज द बैंक्स. देन नेक्स्ट पेज को तुम इग्नोर कर सकते हो पूरी तरीके से कंप्लीटली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केरला इज गोइंग टू विथड्रॉ द अमेंडमेंट. नाउ विच अमेंडमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? द अमेंडमेंट टू द पुलिस एक्ट, जहां पे सेक्शन 118A को ऐड किया गया था केरला पुलिस एक्ट में. एंड द पुलिस वॉज ग्रांटेड पावर टू अरेस्ट अ पर्सन जिसने डिफेम किया किसी को. डिफेमेशन इज अ वेरी वेग टर्म. आपको यहाँ पे या तो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए उसको कि व्हाट इज डिफेमेशन एंड कैसे प्रेस को कितनी इम्यूनिटी देनी है, कितनी फ्रीडम देनी है, या फिर आप इसको लाओ ही मत, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही मत लाओ. तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, डिड नॉट डिफाइन एनीथिंग, बट एक सिंपल सी बात है, सीधे सीधे लोगों के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया कि इफ यू राइट एनीथिंग विच इज डेरोगेटरी, डिफेमेटरी, तो इन दैट केस यू विल बी अरेस्टेड. ठीक है, एंड अरेस्टेड विदाउट अ वारंट. इसमें प्रॉब्लम एक और हो जाती है. माना आपका लॉ जो है वो औरतों और बच्चों को डिफेंड कर रहा है, साइबर बुलिंग से बचा रहा है हमें, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट देयर टू कर्ब एनी काइंड ऑफ रिपोर्टाज. मतलब आप पॉलिटिकल सटायर, ओपिनियन, फ्री स्पीच, इस सबको बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकते हो लोगों की. एंड दिस लॉ वाज डूइंग दैट एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाई दिस अमेंडमेंट विल बी नाउ विथड्रॉन एंड अगेन थिंग्स विल गो एज यूजुअल. हाउएवर ये भी हमें समझना चाहिए कि साइबर बुलिंग इज अ ग्रोइंग कंसर्न एंड वी हैव टू ब्रिंग अ लॉ which has to deal with all these things. Now cyber obviously you should be aware कि कौन सी लिस्ट में आता है. एक कहीं नहीं आता, रेजिडुअरी पावर है. ठीक है, रेजिडुअरी पावर हो जाती है साइबर वाली. सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ब्रिंग एन एक्ट जो साइबर बुलिंग एंड एवरी टाइप के क्राइम से, साइबर ऑफेंसेस से लोगों को बचाए. ठीक है, बिकॉज आज की तारीख में हमने देखा है बहुत सारे लोग यूं ही इरेगुलरली एंड रेगुलरली कुछ भी बोलते रहते हैं. सो दैट इज टू बी डन. ऑलराइट, अगले पॉइंट पे आते हैं. नाउ दिस इज नथिंग इंपॉर्टेंट. यहां से आगे बढ़ते हैं. ये तो हम देख ही चुके हैं पहले, जेल टर्म वगैरह 10 साल की कैद की बात करी है इन्होंने. हाँ, ये एक बढ़िया न्यूज़ है, मज़े लेने के लिए पढ़नी हो तो पढ़ लेना. बट अब जो गुपकर अलायंस वाली पार्टीज हैं उसके लगभग सारे नेताओं के नाम जो हैं लैंड ग्रैबर्स की लिस्ट में आ गए हैं. तो अब तो क्वेश्चन इज वेदर दे विल प्ले द पॉलिटिकल कार्ड सेइंग कि हमें पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, या फिर दे विल एक्सेप्ट कि हाँ ऐसी कोई गलती नहीं थी हमारी एंड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सबमिट करेंगे कि हाँ हमने नहीं ज़मीन जो है कब्जा करी है लोगों की. बट आई बिलीव द चांसेस आर हायर कि ये लोग बोलेंगे कि हमें पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है. नेक्स्ट इज दिस वन. नाउ परमानेंट कमीशन में आर्मी ऑफिसर्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट. नाउ विमेन आर्मी ऑफिसर्स ऑन ट्यूसडे हैव मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिबंक द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स अनाउंसमेंट दैट 422 ऑफ द 615 women officers screened have been found fit for a permanent commission. ठीक है,
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिक्स का मूव है और सब्सटैंशियली औरतों को कोई भी फ़ायदा नहीं किया गया है। इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दीज विमेन विच वर सैंक्शन अराउंड 277 को यहाँ पे मिलेगा कोई भी किसी भी टाइप का फ़ायदा, दे विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन विच इज़ इवन लेस देन हाफ ऑफ 615। तो एक ऑप्टिक्स वाला मूव ज़्यादा हो गया है। जबकि अगर मेल काउंटर पार्ट से इनके कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मेल ऑफिसर्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर द परमानेंट कमीशन बाय द आर्मी। उनको बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट। नाउ दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। if so is the case, court should go ahead and definitely take a look at that, and indeed we'll have to wait and watch, देखना पड़ेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। but then again this is one of the major concerns। अगले पॉइंट पे वैक्सीन को लेके कुछ न्यूज़ थी दो तीन, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ है, अ ईयर ऑन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी स्टिल हेडलेस। तो मैं लगा होगा मैं पोषण अभियान के लिए बोलूँगा अच्छी न्यूज़ है, वो तो ऑब्वियसली है, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। वाई साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है ये सार्क की यूनिवर्सिटी बनाई है, इंडिया इसकी चेयर पे रहती है जनरली, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है व्हेन इट कम्स टू असेसिंग द फॉरेन रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखोगे साउथ के, या फिर इफ यू वांट टू सी द काइंड ऑफ रिसर्च इट इज़ कंडक्टिंग, इट हैज़ बीन वेरी प्रोमिनेंट एंड इट हैज़ द पोटेंशियल, एंड आई एम रिपीटिंग इट, it has the potential of being into top 100 universities of the world. Very easily it can go on to that level. इसको बस अपनी रिसर्च लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी का, एंड इट कैन इजीली गेट इनटू दैट टॉप 100 वाला क्राइटेरिया। गो अहेड एंड रीड अबाउट इट ऑनलाइन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट सिंस 1 ईयर इसमें अपॉइंटमेंट हैव बीन फ्रोजन, पार्टली ड्यू टू कोविड एंड पार्टली ड्यू टू सेम रीजन, ये हमारे यहाँ सब चीज़ें पेंडिंग ही रहती हैं। तो साउथ के अंदर अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू अपॉइंट एनी हेड, but let's see very soon if they are able to do it or not. Next point is Poshan Abhiyan needs a boost, says the study. Now NFHS जो है, which is the National Family Health Survey, this is one of the most important aspects of India's health planning, or let's say health strategy. The survey gives us data regarding what has happened so far and what do we need to do in future. अगर तुम कंपैरिजन देखोगे तो NFHS 4 और NFHS 3 दोनों के डेटा में एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट मिल रहा है। जैसे अगर NFHS 3 के अंदर देखोगे तो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, मतलब स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट रुक जाना, बौनापन आ जाता है जिन बच्चों में, उनका प्रेवलेंस 48% था पहले, और इन 10 सालों के डेवलपमेंट के बाद नाउ दे आर 38.4%। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वेस्टिंग की बात करोगे कि हाइट के कंपैरिजन में वजन मतलब सूखापन जिसे बोलते हैं, पतले होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, दैट हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 19.8% टू 21%। देन अगेन 5 ईयर से अंडर के बच्चे जो सीवियरली वेस्टेड हैं, सीवियरली मतलब भयानक सूखा हो रखा है जिन्हें, ऐसे बच्चे 6.4 से बढ़ के 7.5% तक आ चुके हैं। एंड देन चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडर वेट, मतलब उम्र के हिसाब से, उम्र के अनुपात में जिनका वजन ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों का परसेंटेज भी अप्रॉक्सीमेटली 7% ड्रॉप किया है, 42.5% से घट के नंबर 35.8% तक आ चुका है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि हम 10 सालों में 10% भी कम नहीं कर पाए इन टोटल। तो पोषण अभियान सक्सेस है या फेलियर, ये चीज़ तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट हैपेंड इन इंडिया। व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम 2005-6 टू 2015-16 वी हैव सीन द ग्लोबल क्राइसिस। 2008 वाली ग्लोबल क्राइसिस आई थी जहाँ पे इकोनॉमी शैटर हो चुकी थी पूरी तरीके से। 2012 में इकोनॉमिक शैकल्स वर देयर, ठीक है, एंड इसी तरीके से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली राइज और फॉल कर रहे थे। तो कीपिंग एन आई ऑन ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू रियली इवैल्यूएट वेदर पोषण अभियान इज अ बिग हिट और इट इज़ अ बिग लूज, ठीक है। बट एनी विच वेज 10 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी शुड हैव बीन एबल टू रिड्यूस दीज नंबर्स बाय 25% एटलीस्ट, ठीक है। देखते हैं आगे की हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है एंड हाउ इट प्लान्स टू मेक द चेंज। नाउ नीति आयोग हैज़ बीन एक्टिवली मॉनिटरिंग ऑल द स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एंड लेट्स सी कि क्या होगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक और इफ़ यू हैव रेड यस्टरडेज न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ थी कि अब जितने भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी सर्जरीज परफॉर्म कर पाएंगे, बट वो नोटिफिकेशन आया बाद में, उसको विड्रॉ पहले कर लिया गया है, ठीक है। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होना है इनका, क्यों किया गया विड्रॉल, उस पर भी कुछ डिटेल्स आनी बाकी हैं अभी, बट यू हैव टू सी दैट। देयर आफ्टर ये सारी वेंडेटा न्यूज़ है, सो दैट्स ओके। ये मैंने जो बताई थी तुम्हें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि डजंट मैटर, दीज आर टू कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स जो शादी कर रहे हैं, तो उनका रिलीजन शुडंट मैटर एट ऑल। और घर वालों का क्या है, घर वालों के लिए तो बहुत पहले गाना आ चुका है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो फिर वही बात है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेजेस। माई फेवरेट आर दीज 2 पेजेस इन द हिंदू। कुछ नहीं पढ़ना होता, सीधे स्किप मारना होता है। खैर,
Now US के अंदर the transition to Joe Biden government has already begun, although Donald Trump has decided not to agree that he has been defeated. Moral victory claim कर रहे हैं. Thankfully उनके यहाँ EVM नहीं थी, वरना प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है. Then thereafter पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, डीप स्टेट है वो. श्रीलंका and China to focus on poverty alleviation, again not something you should be bothered with. India is not being a part of that. ये भी ठीक है, ये ढंग की एनालिसिस है, नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी. अगले पेज पे आते हैं. ओके, नाउ लोकल टेंडर प्रायोरिटी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. एक यार बढ़िया न्यूज़ थी, लेट मी शो यू. कहाँ गई ये रही. गवर्नमेंट सपोर्ट्स नीडेड फॉर टूलिंग सेक्टर. नाउ इंडिया जो है अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर रही है एंड इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बना रही है टूलिंग सेक्टर के लिए. तो राइट नाउ इट हैज़ बीन डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू गिव सम एम्फेसिस ऑन टू दिस सेक्टर सो दैट यहाँ पे हमारे जितने भी टूलिंग इंपोर्ट्स हैं या जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकें और हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें. ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक रिलेवेंट एग्जाम्पल है फॉर यू पीपल एंड आई बिलीव यू विल अग्री विद दैट. नाउ सो फार इंडिया के अंदर देर इज नॉट इवन अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हेन इट कम्स टू एयरक्राफ्ट्स. एयरक्राफ्ट्स की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है इंडिया में जिसका पूरा बेस से लेकर सारा का सारा काम इंडिया में होता हो. नॉट इवन अ सिंगल कंपनी. एंड येट ऑलमोस्ट ऑल द एयरक्राफ्ट्स दैट आर फ्लाइंग ग्लोबली, उनके 30% कंपोनेंट्स आर मेड इन इंडिया. ठीक है, 30% कंपोनेंट्स बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना पड़ता है. 2005 में सरकार ने इंटरवीन किया था एंड बाई 2015 वी वर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग 30% ऑलमोस्ट. सो यू शुड रियलाइज दैट अगर हम किसी भी सेक्टर में सरकार ठीक तरीके से इंटरवेंशन करे तो डेफिनेटली वी कैन बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट हब. यू कैन यूज दिस डेटा वेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे. तो ऐसे में फेलियर में टूलिंग सेक्टर का एग्जाम्पल देना और सक्सेस में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देना. इसीलिए तुमने एक चीज सुनी होगी that now we are demanding that we should establish our own aircraft manufacturing companies. Now that we have already become a leading exporter, we should also establish our own companies. ये component ही क्यों बनाने हैं? पूरा एयरक्राफ्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, राइट? सोचो अगर तुम कार के सारे पार्ट्स बना रहे हो, एक असेंबली लाइन भी एस्टैब्लिश कर लो, सारे पार्ट्स को जोड़ के कार बना के बेचो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो दैट इज व्हाट द डिमांड हैज बीन. बट देखते हैं कि अब फ्यूचर में कोई भी प्राइवेट पार्टनर वुड बी एबल टू जंप ऑन टू दैट और नॉट. एंड देन कम्स द स्पोर्ट्स पेज in which I believe Sudoku के सिवा there is nothing more to be discussed about. ठीक है, all right, this is the small D&D. आज के पेपर में कुछ खास न्यूज़ थी नहीं, so almost 30 मिनट्स के अंदर ये खत्म हो गया है. But yeah, do read that editorial piece. ठीक है, take care, जय हिंद.